Welcome to home classes. 12th English, J.K. Bose. Drama. Unit 18, Box and Cox by John Madison Martin. This is the last video lecture of 12th English, J.K. Bose. Drama. Box and Cox by John Madison. Box is a printer and he works all night. Cox is here and he works all day. Box rented a room from Mrs. Bouncer, a lodging house keeper, telling her that he will use it in tea time. Cox visits Mrs. Bouncer's and asks for a room, telling her that he will only use it at night. She rents the same rooms to both of them. Then starts a strange series of situations. Mrs. Bouncer must get Cox out of bed before Box comes home, and Box out of bed before Cox comes home, and she uses all sorts of subterfuges to keep Box downstairs in dining rooms while Kelly, the housemaid, chases Cox out of the house and then strengthens up the room. This worked for a while until one act Cox oversleeps and Mrs. Bouncer, thinking that he has gone, allows Box to go upstairs. He tumbles into the bed and is surprised to find it occupied. A fight follows. Box kicks Cox downstairs. He complains to Mrs. Bouncer, and going upstairs with Cox, confesses that she had rented the room to the both of them. Box, who up to this moment has not noticed Cox, recognizes him as an old acquaintance, and renewing all old ties, they agrees to share the room together. बॉक्स एक पेंटर है और वो रात में काम करता है, और कॉक्स एक हेटर है, वो दिन में काम करता है। बॉक्स ने एक रूम किराए पे लिया है मिस्टर पॉन्सर से, जो एक लॉजिंग हाउस कीपर है वहां की, और कहा उसको कि वो इसको सिर्फ दिन में इस्तेमाल करेगा। कॉक्स ने भी मिसेस बाउंसर का दौरा किया और वहां पे कमरे के लिए पूछा और उसको कहा कि वो इसको रात को इस्तेमाल करेगा। उसने एक ही कमरा दोनों को दिया। एक अजीब हालात की सीरीज शुरू हो गई। मिसेस बाउंसर को कॉक्स बेड से बाहर निकालना होता था इससे पहले कि बॉक्स आ जाता घर में, और बॉक्स को बाहर निकालना होता था इससे पहले कि कॉक्स घर में आ जाता। उसने इस किस्म के जो है वो तरीके इस्तेमाल किए। यानी कि फिर हालात का अजीब गरीब सिलसिला शुरू हो गया। मिसेस यानी कि बाउंसर को बॉक्स को बाहर निकालना था। वो खाने के कमरे में बॉक्स को नीचे रखने के लिए हर तरह की झेली जखीरे इस्तेमाल करती थी, जबकि घरेलू मुलाजमा जो होती थी, जिसका नाम जो है टैली था, वो कॉक्स का पीछा करती थी और उसको बाहर निकालती थी, और फिर यानी कि बाहर पीछा करती थी, फिर कमरे को सीधा करती थी, और ये थोड़ी देर के लिए काम, यानी कि इसने थोड़ी देर के लिए काम किया या थोड़ी देर के लिए चला, यहाँ तक कि एक दिन कॉक्स सोता है और मिसेस बाउंसर ये सोचते हुए कि वो चला गया, बॉक्स को ऊपर की तरफ जाने की इजाजत देता है, फिर वो बिस्तरे पर गिर पड़ता है। हैरतज़दा है कि उससे कब्जा कर लिया गया। लड़ाई इसके बाद शुरू होती है और बॉक्स को कॉक्स
नीचे से लात मारता है और इसने मिसेस बाउंसर से शिकायत की और कॉक्स के साथ ऊपर जाकर मिसेस बाउंसर एतराफ करती है कि उसने दोनों को कमरा किराए पर दिया था। बॉक्स, जिसने इस लम्हे तक कॉक्स को नहीं देखा था, उसने उसे एक पुराने जान पहचान की हैसियत से पहचान लिया है और तमाम पुराने ताल्लुकात की जदीद जिद्दोजहद करके वो कमरे में एक साथ इश्तराक करने पर राजी हैं। अब आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि Jim Morrison's one-act Box and Cox belongs to the dramatic genre phrase. Right? A praise is a form of love comedy designed to provoke the laughter through highly exaggerated caricatures of the people in improbable or silly situation. Trends of the phrase include first, physical puzzles such as slapsticks, second, more verbal humor such as pun, and many literary critics, especially in the Victorian period, have tended to view the praise as inferior to high comedy that involves the brilliant dialogue. The main purpose behind a practical play is to evoke the laughter from the audiences. The language used in a phrase is not only the polity but verges on being bizarre and parliamentarily and abusive. Dialogues used, mostly multi-pronged ones, like to be interpreted differently by the different readers and onlookers. The genre owes its origin to the press theatre, where it meets and roots into the Italy first and later into the England. So far as the Box and Cox by J. M. Martin is concerned, it presents topical examples of the praise, though initially it was staged as a comic opera in prose. All the three dramatic personages, namely Box, Cox, and Mrs. Bouncer, exhibit the trends of the caricatures and are real life like characters. Their every actions, every word they speak is enough to evoke the hilarious laughter. Their moves are ridiculous and their chillings are simply hyperbole. And it's really ridiculous even to harbor the idea of letting out a single room to two tenants simultaneously and not to be found out or caught hold of. Yet Mrs. Bouncer, the protagonist, impacts upon it, is finally found out and put to shame. The dialogue bringing about the panel of praise evokes the hilarious laughter, thus fulfilling the purpose of its creation. Mrs. Box getting his haircut only to discover later that all the hats in the wardrobe wobble round it is another example of hyperbole, making the onlookers laugh over his all the exaggerated remarks about the hat and haircut extra. ये जे एम मॉर्टन का वन एक्ट ड्रामा बॉक्स और कॉक्स जो है वन एक्ट ड्रामा है और इसको ड्रामाई अंदाज में जो है वो पेश किया गया है, जिसको फॉरेस बोलते हैं। फ्रांस एक कम मिजाज की एक शक्ल है जो लोगों को ये जो फ्रेज किसको बोलते हैं, फ्रेज जो है वो फ्रांस का एक कम मिजाज एक शक्ल है जो लोगों को गैर मामूली या अहमकाना सूरत हाल में इंतहाई मुबादलाना अमेज नक्श निगारी के जरिए कहकशाओं को जो है वो क्या करता है, कहकशाओं को कहकहों को भड़काने के लिए
डिजाइन किया गया है, राइट। और उसके बाद इसमें तंज की खूबियां हैं। फर्स्ट, जिस्मानी हलचल जैसे थप्पड़ वगैरह। और सेकंड, वसी या दूसरी वसी जुबान तंज जैसे पंस शामिल हैं। बहुत सारे अदबी नकात, खास तौर पर विक्टोरियन दौर में इस ख्याल को हाई जो है वो कॉमेडी से कमतर समझने में, जिसमें शानदार मकाला होता है। एक शाइस्ता ड्रामे के पीछे बुनियादी मकसद सामीन की तरफ से मज़ाहिया हंसी को भड़काना है, और तंज में इस्तेमाल होने वाली जबान न सिर्फ नाकिस है बल्कि अजीब गरीब और गैर मुहज़्ज़ब होने पर भी जो है वो अहद है। इस्तेमाल में होने वाले मकाले ज्यादातर कसीर तादाद में होते हैं, जिनका इम्कान मुख्तलिफ क़ारीन और तमाशाइयों के जरिए मुख्तलिफ अंदाज में होता है, राइट। और इस ज़मन में की इब्तदाई फ्रांसीसी थप्पड़ से है, जहां इसने पहले इटली और बाद में इंग्लैंड में दाखिला लिया, या पहले इटली में आया और फिर बाद में इंग्लैंड में आया। अच्छा, जहां तक जिसे एम मार्टिन के जरिए बॉक्स और कॉक्स का ताल्लुक है, तो ये फारिस की एक उम्दा मिसाल पेश करता है। हालांकि इब्तदा में ये फ्रांस में मज़ाहिया ओपरा के तौर पर जो है पेश किया गया था। बॉक्स, कॉक्स, मिसेस बाउंसर तीनों ड्रामाई शख्सियात जो नाकिस्तु की तरह हकीकी जिंदगी की तरह नहीं कैरिकेचर की खूबी को नमाश करती है, और इनका हर अमल, हर लफ्ज जो बोलते हैं, मज़ाहिया हंसी को भड़काने के लिए काफी है, और उनकी चालें मज़ाहिया खेज हैं, और इनके मामला सिर्फ हाइपरबोल हैं। यहाँ तक कि एक ही कमरे में दो किराएदारों को एक साथ छोड़ने के बारे में भी ख्याल रखना और इसका पता लगाना या पकड़ा जाना वाकई मज़ाहिया खेज है। इसके बावजूद मिसेस बाउंसर ने इसका मरकजी किरदार शुरू किया, और आखिरकार पता चला कि वो शर्मिंदा तदबीर हुआ, और तंज के इख्तिताम पर होने वाले मकाले इस तरह इसकी तख्लीक के मकासद को पूरा करने पर मखसूस शुदा हंसी को जन्म देती है। मिस्टर कॉक्स का पता चलने के लिए इसके बाल कटे हुए हैं, और इसकी अलमारी में घूमने वाली तमाम टोपियां जो है वो एक और मिसाल है, और तमाशाइयों ने टोपियां, बाल कतराने वगैरह के बारे में इनके तमाम मुबालगा अमीज रिमार्क्स पर हंसना शुरू कर दिया है। कैरेक्टर ऑफ मिसेस बाउंसर। मिसेस बाउंसर का कैरेक्टर काफी हद तक जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि सारा प्ले जो है इसी के गिर्द घूमता है, इसलिए इस कैरेक्टर पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पैटर्न मैंने कल भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए से जो यूट्यूब पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उस पर मैंने समझाया था कि कैरेक्टर स्केच जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसी जमन में मैंने इस कैरेक्टर स्केच को आपके लिए तैयार किया है इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है। Mrs. Bouncer is a female component of J.M. Martin's one-act play, a praise Box and Cox through seemingly and insignificant and less important dramatic personnel. Yet it is she round whom the other two characters, Mrs. Box and Cox, revolves. She resembles present spectacles, the puppet master who occupies the position behind the curtain, but whose fingers hold the thread that make puppets revolve and dance. Her part in the main dramatic action and dialogue
is just ordinary and travels. Yet if she is removed, the plot will be reduced to naught and the entire dramatic action will come to stand still. Though not mentioned, Mrs. Bouncer seems to be middle-aged lady, full of vigor and wit. She is always borne up and doing, uh, vigilant and watchful. She is not very well off, and it is her need for money that makes her resist to other hand and deceitful tacitus to do away with her penury. She is by nature a courteous lady, and it is these strengths of personality that makes her let out a single room to two tenants simultaneously, taking undue advantages of their callings. Mr. Box, a hater, requiring the room to span right. Mr. Cox, a printer, needing it per day only. Mrs. Bouncer is quite active, alert, and vigilant to an appreciable extent. It is evident by her not letting even the suspicious dawn on either of the two tenants for quite some times that they are occupying the same room. At the same time, she presents a miserable spectacles of a tough-skinned woman, a shame-proof one, who can swallow and digest any and every amount of insult and disrespect she is accused of stealing by both her tenants, but she turns a deaf ear to their insulting remark merely to ensure receiving double rent for a single room. She presented typical examples of phrases and caricature with unparliamentary and uncivil language and abusive and abusing demeanor and beguiling and distasteful dealings. मिसेस बाउंसर J.M. मॉरिन के वन एक्ट ड्रामे की एक खास खातून और एक फरहद कॉक्स अगरचे बज़ाहिर एक अहम और कम अहम ड्रामाई शख्सी लगता है, लेकिन फिर भी ये वही शख्स है जिसके दो किरदार मिस्टर कॉक्स और मिस्टर बॉक्स घूमते हैं. वो कठपुतली मिसेस कठपुतली मिस्टर बाउंसर के तमाशाई, यानी कि वो कठपुतली है, सॉरी, जो मतलब मास्टर, वो कठपुतली मास्टर है. कॉक्स और बॉक्स के तमाशाई जैसे पेश करती है जो पर्दे के पीछे पोजीशन पर कब्जा करती है, लेकिन जिसके उंगलियों में धागे थामे हुए हैं या थामे हुए होते हैं, राइट. अच्छा, फिर क्या होता है आगे? थामे हुए होते हैं जो कठपुतली को घुमाते हैं और नचाते हैं. मरकजी ड्रामाई कार्रवाई और मकाले में इसकी जो है खास हिस्सा महज मामूली है, और फिर भी अगर उससे हटा दिया गया तो प्लॉट कम हो जाएगा और पूरी ड्रामाई कार्रवाई अब भी खड़ी हो जाएगी, राइट. अगरचे इसका जिक्र नहीं किया गया है कि मिसेस बाउंसर कितने साल की है. लगता है कि वो दरमियानी उम्र की औरत है, जोश और जज्बे से भरी हुई है. वो हमेशा चौकस रहती है और जो है वो इतनी ज्यादा ठीक नहीं है. उसे जो है वो ये सब कुछ इसलिए करती है कि उसे पैसों की जरूरत होती है और वो उसे अपनी बेवकूफाना और फरेबकारी की तदबीरों का सहारा जो है वो लेती है ताकि वो इसकी जो है वो पैसा कमा सके. वो फितरत की लालची वाली औरत जो है वो लगती है, राइट. फिर क्या लगता है, और फिर इसकी शख्सियत की ये खूबी है कि जिसकी वजह से वो एक ही कमरे में दो किराएदारों के साथ इनके जो है वो कलंक मिस्टर बॉक्स का नाजायज फायदा उठाती है और कमरे को रातें गुजारने की जरूरत होती है और मिस्टर बॉक्स को एक जो वो
मिस्टर कॉक्स जो एक प्रिंटर होता है और जिसकी जरूरत सिर्फ जो है दिन को के लिए उस कमरे की होती है। मिस्टर बाउंसर काबिले अमल की हद तक काबिले एतमानान और चौकस थे। उसने वाज़े तौर पर इन दोनों को किराएदारों में से किसी एक पर भी काफी वक्त के लिए शक व शुबात पैदा होने नहीं दिया और वो एक ही कमरे पर काबिज है। बाज अवकात वो सख्त चेहरे वाली औरत का एक दुखी तमाशा पेश करती है और एक शर्मनाक सबूत है कि वो किसी भी तरह की तौहीन को निगल सकती है और हजम कर सकती है, और इस पर इल्जाम है कि इसने अपने दोनों किराएदारों के जरिए चोरी की थी, लेकिन वो महज एक कमरे के लिए 2 गुना किराया वसूल करने को यकीनी बनाने के लिए इनकी तौहीन आमेज कलमात से कड़कती है। वो गैर पार्लियामेंट्री और गैर मुहज़्ज़िब ज़बान वाली फर्जी कैरिकेचर की एक उम्दा मिसाल पेश करती है। बदसलूकी और ज्यादती बर्ताव और धोखाधही से मुतलक जो है वो सलूक करती है। थैंक यू फॉर watching.